Hello everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examination. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज के इस थर्ड वीडियो में, जहां हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स का एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर 13 जून 2025 फ्राइडे एडिशन से. सो एक क्विक डिस्क्लेमर, वी हैव ओनली कंसीडर्ड द न्यूज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडिशन विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, यानी जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनके लिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में हमने कंसिडर किया है. ओके, ऑलराइट. एंड इफ यू वांट अस टू डू द एडिटोरियल एनालिसिस आल्सो ऑफ द सेम पेपर, प्लीज पुट दैट ओवर द कमेंट्स. ओके, ऑलराइट, वी लुक इनटू इट एंड डू द नीडफुल. ऑलराइट एवरीवन, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 13 जून 2025 का एडिशन है. ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ जो यहाँ हमारे सामने है, इट सेज रिटेल इन्फ्लेशन eases to 6-year low. Okay, now the first and foremost thing which I would like to share over here, that what do we mean by retail inflation. Okay, ये retail inflation जो term है, ये बहुत ज़्यादा important है. retail inflation. Okay, तो ये जो retail inflation term है, this is something which is very important. Let's try to understand it first. Okay, all right, that what do we mean by retail inflation. Okay, one more thing, it is also known as consumer price index. ये जो retail inflation है, इसे consumer price इंडेक्स भी कहा जाता है. ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ऑलराइट, तो क्या क्या कहा जाता है? रिटेल इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, नाउ इट रेफर्स टू द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस. Okay, which leads to decrease in the purchasing power of money. All right, so in other words, we can also say that it tracks the change in retail prices of goods and services that household purchase for डेली कंजम्पशन. ओके, ऑलराइट, तो अगर इसे बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाए या समझने की कोशिश की जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं दैट इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग. ओके, ऑलराइट, ये आपको याद रख लेना है. ठीक है, ऑलराइट. तो अगर हम इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, तो ये 75 मंथ लो पर पहुंच गया है. कब से? सिंस फरवरी 2019, यानी फरवरी 2019 के बाद जो मई 2025 था, उसमें आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है इंडिया का, वो है 2.8%. ओके, 2.8% इज़ द रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया in May 2025, which is lowest since February 2019. Okay, all right, and why is it so? Due to the slowing food prices. ये बात भी हमको यहाँ से नोट करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द एवरेज इन्फ्लेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, कि 75 मंथ लो जो रिटेल इन्फ्लेशन का रेट है, वो कब ऑब्जर्व किया गया? सो इन May 2025. व्हाट डू वी मीन बाय retail inflation? What is retail inflation also known as? So it is known as consumer price index. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, alright. So if we talk about the average inflation for 2025-26 as per the 2-month data, it stands at 2.99%. Okay, alright. And if we talk about this is the lowest for the initial months of a financial year since 2017-18. This is also to be noted. Okay, alright. Now if we talk about food and beverage inflation, it dropped to 1.5% in May, down from 2.1% in April. Okay, alright. So if we talk about the food and beverage inflation, it is dropped to 1.5%. Okay, and it makes the 7th consecutive month of decline. If we talk about this particular drop, 1.5% in May, it marks the 7th consecutive month of decline. Remember that. Okay, alright. Now if we talk about food components such as vegetables, pulses, spices and meat, so deflation in these components as per this particular news article contributed to the downward trend. Remember this also. Okay, why is this inflation rate observed? Because of deflation in the components like vegetable, pulses, spices and meat. Okay, but on the other hand, if we talk about the edible oils and fruits, okay, they continue to see double digit inflation. This is also important. Okay, that if we talk about vegetables, pulses, spices and meat, okay, there is a continuous deflation which is being observed. But on the other hand, if
वी टॉक अबाउट एडिबल ऑयल्स एंड फ्रूट्स, अगर हम एडिबल ऑयल्स और फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है. ओके, एंड अगर हम इकोनॉमिस्ट्स के बारे में की राय माने, सो दे प्रेडिक्ट अ पॉज इन RBI रेट कट्स. ओके, ऑलराइट, दैट साइड्स ईजिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो रिसेंट रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट. ऑलराइट, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं RBI के रेट कट्स में थोड़ा सा पॉज ड्यू टू ऑल ऑफ दिस डेटा दैट वी हैव डिस्कस. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 3 चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है. रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, इट्स नथिंग बट कॉस्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, ऑलराइट. इसे और क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, एंड व्हाट इट इज, इट एक्चुअली ट्रैक्स द चेंज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड परचेज फॉर daily consumption. Okay, all right. And if we talk about the retail inflation in month May of 2025, it was 2.8%. Okay, all right. So which was at 75-month low from February 2019. Okay, all right. So I hope we are clear with this particular article. Let's now proceed further. All right, it reads, India marks a relative drop in gender parity. Okay, now again यहाँ पे हमको एक चीज़ जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जेंडर पैरिटी होता क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट मेंस ऑल्सो, UPSC MPPSC मेंस, राइट, तो वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, इनको आपको एक्सप्लेन करने कहा जा सकता है. जैसे अभी रिटेल इन्फ्लेशन की हमने बात की. ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो आर्टिकल है, ये किस रिपोर्ट पे बेस्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ओके, ऑलराइट. तो ये जो रिपोर्ट है, ये किसने रिलीज़ की है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने. ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ओके, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की रैंक जो है वो कितनी बताई गई, 131 आउट ऑफ 148. ओके, ऑलराइट. तो अगर टोटल लिस्ट 148 की है, 148 कंट्रीज़ की है, तो इंडिया की रैंक वहाँ पे 131 है. ओके, इन दी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025. ओके, एंड व्हाट इज द पैरिटी स्कोर, सो द पैरिटी स्कोर इज 64.1%, विच वॉज स्लाइटली लोअर देन द लास्ट ईयर्स. ओके, सो लास्ट ईयर इट वॉज 129 आउट ऑफ 146. ओके, नाउ एवरीवन, लेट्स ट्राई to understand what is gender parity. ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So it is a statistical measure of equality between men and women, okay, in a particular or in a given population. ठीक है, तो अगर हम इसे बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो भाई what is gender parity? So it actually aims फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल. ओके, तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपका एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ है, सर्वाइवल है, वहाँ पर मेल और फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ठीक है, और उसका मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, उसको एम क्या करता है, ये जेंडर पैरिटी. ओके, सो जेंडर पैरिटी इज समथिंग व्हिच एम्स फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन वेरियस एस्पेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया की जो रैंक है अभी वो कितनी है, 131 आउट ऑफ 148. लास्ट ईयर कितनी थी, 129 आउट ऑफ 146. ओके, अब अगर हम इसका थोड़ा सा साउथ एशियन कंपैरिजन करते हैं, जो कि फिर से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वी आर लोएस्ट रैंक्ड इन द रीजन. प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट. ठीक है, तो अगर हम जेंडर पैरिटी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अनुसार देखें, सो वी आर लोएस्ट इन द साउथ एशियन रीजन. ठीक है, तो इंडिया जो है लोएस्ट रैंक्ड है हम इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी इन द सदर्न एशियन रीजन. ओके, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट बांग्लादेश, ये भी आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, बांग्लादेश जम्प 75 स्पॉट्स टू रैंक 24 ग्लोबली. ये साउथ एशियन कंपैरिजन है, इसलिए हम बांग्लादेश को पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश की जो रैंक है अभी इस बार इस इंडेक्स के हिसाब से वो कितनी है, 24. दैट इज ग्लोबली. ग्लोबल रैंक कितना है, 24 ग्लोबली.
ओके और हमारी हमारी कितनी है 131. ओके सो रिमेंबर दैट वी आर द लोएस्ट रैंक्स. अगर हम इंडिया की बात करें तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज़ द लोएस्ट रैंक. ओके ऑल राइट. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का जो ये 24th स्पॉट है राइट, इट शोज गेन इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. ओके ये भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अगर हम ओवरऑल ग्लोबल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से द ओवरऑल जेंडर गैप इज क्लोज टू 68.8%. है ना, कितना है 68.8%. ओके विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनुअल इम्प्रूवमेंट आफ्टर कोविड-19. ठीक है, तो अगर अभी के प्रेजेंट में हम ग्लोबल ट्रेंड देखेंगे तो द ओवरऑल जेंडर गैप इज अराउंड 68.8 विच मार्क्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एनुअल इम्प्रूवमेंट सिंस कोविड-19. ओके बट इफ यू टॉक अबाउट द फुल पैरिटी इट रिमेन्स 123 ईयर्स अवे एट करंट रेट्स. ये ग्लोबल ट्रेंड के बारे में हम बात करें. ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट देखिए, जैसे हमने बात की बांग्लादेश 24 है, 24th पोजीशन पर है. अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो वी आर एट 131st पोजीशन. ठीक है, एंड फर्स्ट इज फिनलैंड. ओके फिनलैंड जो है, सॉरी नॉट फिनलैंड, आइसलैंड. ओके सो आइसलैंड आपका फर्स्ट है. ओके फॉर 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर. ओके तो 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर अगर हम देखें तो आपका जो आइसलैंड है वो फर्स्ट स्टैंड कर रहा है 16 लगातार सालों से. ठीक है, और साथ साथ में अगर हम फिनलैंड के बारे में बात करें सेकेंड, नॉर्वे थर्ड, UK फोर्थ एंड देन फिफ्थ न्यूजीलैंड. ओके ऑल राइट. सो फर्स्ट जो है वो आइसलैंड है इस रिपोर्ट के हिसाब से. जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे यहाँ पे नोट कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें ये चीज़ देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से क्वेश्चन देख सकते हैं. ठीक है, तो एक बार ज़रा जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ. सो फर्स्ट क्या है भाई, आइसलैंड. याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ऑल राइट. आपका जो सेकंड है वो क्या है, फिनलैंड. ऑल राइट, सेकंड पोजीशन पे फिनलैंड है. थर्ड पोजीशन की अगर आप बात करते हैं तो नॉर्वे है, फिर है यूके. ओके एंड देन फिफ्थ है न्यूजीलैंड. याद रखिएगा. ठीक है ऑल राइट. इंडिया 131st पोजीशन पर है और बांग्लादेश इज एट 24th पोजीशन. फर्स्ट इज आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ यूके एंड देन फिफ्थ इज न्यूजीलैंड. तो ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, अगर हम इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें सो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है वो 45.9% रहा है हमारा. लास्ट ईयर भी इतना ही था. ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट के बारे में बात करें तो इट इज़ 97.1% जो फीमेल लिटरेसी में प्रोग्रेस दिखाती है हमारी कंट्री की. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हेल्थ एंड सर्वाइवल तो यहाँ पर भी हमको इम्प्रूव्ड स्कोर्स देखने के लिए मिले हैं. किस एस्पेक्ट में, सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में. ओके सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल. ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जैसे कि इससे पहले वाला आर्टिकल था. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. प्लीज़ मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड इफ़ यू नॉट डन ऑलरेडी टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. कर्नाटका कैबिनेट गेव नॉट फॉर फ्रेश कास्ट सर्वे CM. ओके ऑल राइट. तो जो कर्नाटका का कैबिनेट है ऑन थर्सडे, ये कब हुआ भाई, ये हुआ थर्सडे को. ओके थर्सडे मीन्स 12 जून 12/6/25. ठीक है, सो थर्सडे को कर्नाटका के जो CM है, कर्नाटका कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कास्ट सर्वे रिप्लेसिंग द 2015 रिपोर्ट. मतलब लास्ट टाइम कभी हुआ था, लास्ट टाइम 2015 में हुआ था और उस रिपोर्ट को जो है अभी तक कर्नाटका स्टेट में फॉलो किया जा रहा था और अब उस रिपोर्ट जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा इस नए सर्वे से. ठीक है, तो जो सर्वे है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कास्ट सर्वे. ओके ये प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको नोट करना है. ठीक है, और इसके पहले कब हुआ था, 2015 में हुआ था. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कब आई, ये कब अप्रूवल मिला है इसे, ऑन थर्सडे. ओके तो कौन सा सर्वे है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कास्ट सर्वे. लास्ट कब हुआ था, 2015 में हुआ था. ओके
Now, if we talk about the Congress High Command, as per this particular article, they urged a new survey to address complaints of community exclusions, notably Kaliga and Veerashaiva Lingayat groups. Okay, and if we talk about the legal basis for this approval, देखिए इतना बड़ा approval अगर मिला है तो उसका कुछ legal basis रहा होगा, right? So, if we talk about the legal approval, it gets its legal approval from Karnataka State Commission for Backward Classes Act, which mandates a survey in every 10 years. ठीक है, तो जो कर्नाटका स्टेट कमीशन है वहाँ का बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो है वो मैंडेट करता है, कर्नाटका स्टेट कमीशन का बैकवर्ड क्लास एक्ट मैंडेट करता है कि इस तरीके का सर्वे हर 10 ईयर्स में होना चाहिए. ठीक है, तो एक बार हुआ था 2015 में और नाउ वी आर सिटिंग इन 2025. ओके, तो ये जो है ये इसका लीगल बेसिस था अप्रूवल का. नाउ एक और चीज़ है, इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो 90 डेज रखी गई है. ओके, द सर्वे हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज. ओके, एंड जो नए कमीशन मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट जल्दी ही होगा. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जो लास्ट सर्वे था वो कब हुआ था, 2015 में हुआ था, एंड इट इज़ कंडक्टेड अंडर CM सिद्धरामैया. ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसके अंडर में हुआ था. एंड टोटल कॉस्ट आया था ₹165 crore. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कर्नाटका वॉज द फर्स्ट स्टेट टू डू सो सिंस ब्रिटिश एरा 1931 नेशनल सेंसस. ठीक है, तो कर्नाटका ऐसा फर्स्ट स्टेट था ये करने वाला, इस टाइप का सर्वे कंडक्ट कराने वाला आफ्टर द ब्रिटिश एरा 1931 नेशनल सेंसस. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़. की एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ देम. अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ फ्रॉम G7 समिट. ठीक है, अभी आपका जो G7 समिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. G7 समिट जो है, G7 समिट, ठीक है, 2025, G7 समिट 2025 कब होने वाला है, फ्रॉम June 15 टू June 17. ओके, ये याद रखना है आपको. कहाँ पर होने वाला है, कनाडा में. ओके, ये भी याद रखना है. ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो ठीक है, बट मैम व्हाट इज़ G7 समिट वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट, सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस G7 लीडर समिट, ठीक है, होने कहाँ वाला है, कनाडा में होने वाला है. नाउ सी, यहाँ पे बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होगी. क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज जैसे जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात की जाएगी. नाउ मोदी इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट. ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो G7 समिट है 2025 का, ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है कनाडा में, फ्रॉम June 15 टू June 17. ओके, एंड मोदी जो है, मोदी इस समिट को अटेंड करने वाले हैं. ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पर मीटिंग होने वाली है मोदी जी की मार्क कार्ने से. ओके, ऑलराइट, तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है इसमें कौन कौन से मेजर डिस्कशन हो सकते हैं. ओके, बिकॉज ये होने वाला है ना 15 to 17, तो कौन कौन से मेजर डिस्कशन हो सकते हैं, बायलैटरल एंड ग्लोबल इश्यूज़, रीसेट ऑफ रिलेशंस एंड म्यूचुअल कंसर्न्स. ओके, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर डिस्कशन होगा. नाउ व्हाट आर दिस एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग, रीसेटिंग इंडिया कैनेडा टाइज. दिस पर्टिकुलर मीटिंग इट एम्स टू रिबिल्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स आफ्टर the past tensions, focusing on mutual respect and shared interest with Canada. Security cooperations from both sides, they are expected to continue law enforcement dialogues addressing concerns over Khalistan-linked activities and organized crime. Economic engagement, Canada seeks stronger trade ties with India, especially amid shifting global alliances, and global collaboration. Discussions will cover bilateral and international issues, reinforcing India's role in G7 dialogues. Okay, so these are the expected outcomes as per this particular article. Okay, so Modi is going to attend the G7 our Prime Minister Narendra Modi ji is going to attend the G7 summit 2025, which will be held from June 15 to June 17 in Canada. In Canada. And yes, one more thing, what are the expected outcomes, resetting India-Canada ties, security cooperation, economic engagement and global collaboration. Okay, so this is about this particular article. I want all of you all to post what do you know about G7 summits. Okay, what do you know about the history of G7 summits and why they are organized for. Okay, and you can also mention the name of the countries which will be participating or name of the leaders which will be participating first time in the G7 summit. Okay, all right, so please post that in the comment box. Let's move to the next news article. Yes, so if we talk about this, World
Test Championship final. Okay, all right. So this is about World Test Championship final, and as you can overly see, as you can see that on by the end of the second day, Australia led by 74 runs in the first innings. Okay, but just a second, everyone. I'm so sorry. Just a second. Yeah. Okay. So this is about the World Test championship. Okay, all right. So by the end of the second day, this news is by the end of the second day, Australia led by 74 runs in the first inning but faced a collapse, ending day 2 at 144 for 8 against South Africa. Okay, so World Test Championship final is going on. Okay, and the final is between Australia एंड साउथ अफ्रीका. ये पता होना चाहिए आपको अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि विनर इनमें से कोई एक ही टीम होगा, तो जो विनर नहीं होगा वो डेफिनेटली सेकेंड पोजीशन पे रहेगा, राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, ऑस्ट्रेलिया लेड बाय 74 रन्स इन द फर्स्ट innings, and if we talk about day 2, they finished at 144 for 8 against South Africa. Okay, now if we talk about Pat Cummins' performance, so he took 6 wicket for 28 runs, reaching 300 test wickets. Very, very important. Okay, all right, and dismissing South Africa for 138 after a rapid 5 wicket downfall. So it was a wonderful day for Pat Cummins. Okay, he took 6 wicket for 28 runs. And if we talk about South Africa's fight back, so Rabada 5 for 51 in the first innings, and Ngidi 3 wickets in the second innings. Okay, all right. On the other hand, if we talk about Carey, Alex Carey, he scored 43, and Mitchell Starc 16, and he's still batting. Okay, all right, and they together have made a 61 run partnership for the 8th wicket. All right, so yeah everyone, let's proceed further, and by tomorrow we'll get the after some days we'll get the winner for World Test Championship as well. So yeah, let's move to the next article. So this one is very, very important. This thing, global biopharma major GSK is going to partner with Bharat Biotech, okay, on Shigella vaccine development. This is a very important news. Okay, so as per this particular article, Bharat Biotech will spearhead phase 3 clinical trials, regulatory approvals, and large scale production for GSK's Shigella vaccine. What is the name of the vaccine? That is very, very important. Alsin EX123. Okay, so this name is very, very important. This is something which is very, very important. This name is also very, very important. Okay, the examiner may ask you कि आपका जो भारत बायोटेक है उन्होंने किसके साथ पार्टनर किया है for the Shigella vaccine development. So the name is GSK, okay, which is a global biopharma major. And yes, one more thing, what is the name of the vaccine? Alsin EX123. ओके, ऑलराइट. अभी जीएसके का क्या रोल होगा इसमें? भारत बायोटेक क्या करेगा? फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ऑन द अदर हैंड, जीएसके विल प्रोवाइड सपोर्ट इन क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, एक्सटर्नल फंडिंग एंड कमर्शियलाइजेशन. ओके, ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है वो क्यों हुआ है? ताकि जो वैक्सीन का डेवलपमेंट है उसको स्पीड अप किया जा सके. ओके, ऑलराइट. और साथ ही जो बैक्टीरियल डायरिया है वर्ल्ड वाइड, उसको बहुत के लिए जो शिजेला वैक्सीन है उसका फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी किया जा सके, ताकि जो केसेस हैं उनको उन पर कंट्रोल किया जा सके वर्ल्ड वाइड. ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम आरबीआई. आरबीआई ईजेस केवाईसी नॉर्म्स टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन. देखिए, अभी जो आरबीआई लेटेस्ट ऑन थर्सडे आरबीआई ने केवाईसी नॉर्म्स जो हैं उनको थोड़ा सा ईज डाउन किया है. क्या क्या किया है वो देख लेते हैं फ्रॉम दिस न्यूज़ आर्टिकल. ओके, एंड देन वील समराइज. सो जो लो रिस्क कस्टमर्स हैं, ओके, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है. बैंक मस्ट कंप्लीट पेंडिंग केवाईसी अपडेट्स विद इन 1 ईयर और बाई जून 2026 विच एवर इज़ लेटर. ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो लो रिस्क कस्टमर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है. बैंक को जो बैंक्स हैं उनसे कहा गया है कि जो पेंडिंग केवाईसीज हैं उन्हें कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर और बाय जून 2026. ओके, इसके साथ साथ वीडियो बेस्ड केवाईसी जो है उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है. वीडियो बेस्ड केवाईसी VCIP, ये नेम आपको याद रखना है. ओके,
It is introduced for customer onboarding and information updates. Okay, also if we talk about the banking correspondents, they are authorized to facilitate KYC updates, aiding account reactivation. And if we talk about the special outreach efforts, the banks are advised to set up camps in semi-urban and rural areas to streamline the process. And if we talk about again one very important fact from this particular article, addressing PMJDY account issues, many accounts are inactive due to the KYC hurdle, which impacts the direct transfer, direct benefit transfer withdrawals. So for all these reasons, RBI has eased down the KYC norms, okay, so that the financial inclusion nationwide can be enhanced. Okay, all right. And if we talk about the Payments Council of India, so they have welcomed this particular move, and they have also cited the benefits in faster onboarding and formal financial adoption. Okay, all right everyone, so yes, let's move to the next news article coming from the sports sector. Just a second. Yeah, so as you can clearly see over here, the news is about Sifat Kaur Samra. So as we have already discussed in the previous news analysis also, that the world shooting, the shooting World Cup is going on in Munich. So if we talk about Sifat Kaur Samra, she is Asian gold medalist. Okay, and she secured bronze in the 50-meter rifle 3 position. Okay, or 50-meter rifle. Okay, now do try to understand that if we talk about Sifat, so remember that इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और अभी 50-मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो म्यूनिक में अभी जो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती हुई आपके पास. एंड याद रखिए नाम क्या है, सिफत कौर सामरा. एशियन गेम्स की ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, और साथ ही साथ 50-मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ओके, ऑल राइट. If we talk about the gold medalist, it is Norway's Janet Dustad. ओके, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है. तो नॉर्वे जो है वो नॉर्वे की जो जेनेट रही हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट सिफत कौर, शी स्टूड 3rd. ओके, और ये उनका इस सीज़न का 2nd मेडल है. फर्स्ट उनका ब्यूनोस एयर्स वर्ल्ड कप में जो गोल्ड मेडल था वो उनका फर्स्ट मेडल था इस पर्टिकुलर सीजन में. अगर हम मेंस 10-मीटर एयर राइफल के बारे में बात करें तो किरण जाधव जो हैं वो फाइनल अब नहीं खेल पाएंगे, ठीक है, ऑल राइट. ही जस्ट टू 0.1 पॉइंट शॉर्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट मेडल्स टेबल, तो चाइना इज लीडिंग विथ 3 gold, 1 bronze, and Norway is on second position with 2 golds, 1 silver, and India has only 2 bronze. Okay, all right everyone. So this was about all the important articles from today's The Hindu newspaper. I hope this video is going to be fruitful for your preparation. And yes, till the next time we meet, stay safe and keep following PCS Pro. Thank you for watching. Take care.